Hello and welcome back to Takshila classes. Today we are going to do another practice series which is spotting errors. So it was requested by one of the students that we should practice spotting errors more. So let's find out whether you can solve these questions easily or not. Okay, तो छोटा सा session रहेगा. Don't worry and let's begin quickly. The first statement is I was taken with surprise when I saw the glamorous Apu Ghar. You have to tell me where does the error lie. और आप फटाफट से comment section में बता सकते हैं and then I will tell you what the real answer is. Now, when I saw the glamorous Apu Ghar, इसमें कोई error नहीं है. Okay, error lie करता है A में क्योंकि taken with surprise नहीं होता है, हमेशा taken by surprise होता है. So error is in A. Okay, taken by surprise का मतलब जब आप किसी चीज़ से चौंक जाओ. Okay, or when you are shocked because of something. So the answer lies in A. Everyone felt that the big glittering diamond was most unique. Everyone felt that the big glittering diamond was most unique. You have to tell me whether the problem is in A, B, C, or this sentence is completely error free. There is no error in this sentence. Hurry up. I think those who have learned the concepts well, by now they must be knowing कि यूनिक, एब्सोल्यूट, एक्सट्रीमी हमने एडजेक्टिव्स में करा था कि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती. तो अगेन एरर हमारा कहाँ पे है? सी में. बहुत बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मोस्ट लगा दिया, द कहाँ गया, है ना? ये आंसर नहीं है. हमारे पास हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि यूनिक के साथ कभी मोस्ट नहीं लगता बिकॉज देयर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स दे कैन नेवर बी इन देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म, राइट? सो दैट इज व्हाई आंसर इज सी. थर्ड, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर. इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर. वेल, इफ यू हैव studied conditional sentences, you must know the answer if you have studied this. This entire sentence falls in the category of type 2, जो कि hypothetical situations के बारे में बात करता है. मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा मिस्टेक में नहीं करती, राइट? लेकिन अगर मैं इसे टाइप 2 की कैटेगरी में रखती हूँ तो मैं यहाँ क्या चेंज करूँगी कि इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट कमिट दिस ब्लंडर. क्या ये करेक्ट है? नो. इसलिए ये किस कैटेगरी में जाता है? ये जाता है टाइप 3, जो लास्ट कैटेगरी है, जो कहता है ऑल्टरनेट सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ आई हैड बीन यू I would not have committed this blunder, right? ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3. वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बारी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस. इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे. इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे. अगेन दिस फॉल्स अंडर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1. अगर मेरे फादर अप्रूव करते हैं तो ही मैं बॉम्बे जाऊंगी, राइट? सो ही हैज टू अप्रूव इट नाउ. And that is why यहाँ पे क्या होना चाहिए? If my father approves and then this action will take place. So conditional sentence type 1 क्या कहता है? अगर एक चीज़ सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरी किस में होगी? सिंपल फ्यूचर में. इसलिए यहाँ एरर किस में है? बी में, राइट? जिनका आंसर करेक्ट आ रहा है, गुड फॉर यू. Only reason Mario decided to partake in mass was to stop his mother from complaining constantly. Only reason Mario decided to partake in mass was to stop his mother from complaining constantly. Even if you don't know the answer, even if you don't know the concept, when you read this statement, यहीं पे आपको एरर समझ आ रहा है कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा. पहली बात क्यों? क्योंकि ओ एक वाउल साउंड है, राइट? उसके साथ तो वैसे ही नहीं आ सकता. और हम कह रहे हैं सिर्फ इकलौता रीजन. सो वी आर बीइंग मोर स्पेसिफिक एंड दैट इज वाई हियर इट शुड बी द. The only reason Mario decided to partake, and that is why error is in first part, the first segment.
Clear? The only reason Mario decided so and so. I was shocked to hear that his father died of an accident. Yes, what do you think could be the potential answer? I was shocked to hear that his father died of an accident. देखो, पहली बात died of, died from, इनमें फर्क क्या है? See, died of is used when you die of an internal cause. For example, he died of cancer, he died of heart attack, anything. Die from होता है जब external reason से किसी की death हो जाए. For example, he died from a sunstroke. Okay, when the reason is external. But accident में you always die in. I was shocked to hear that his father died in an accident. एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरे, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. दैट इज वाई एरर कहाँ पे होगा आपका? सी में. और ये डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में से डिफरेंस जरूर याद रखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. डाई ऑफ फॉर इंटरनल कॉजेज एंड डाई फ्रॉम एक्सटर्नल कॉजेज. माई अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर. चलिए सोचिए इसमें भी क्या एरर हो सकता है. माई अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर. जब हमारे पास कोई कंट्री का नाम हो, मान लीजिए रशिया, यूएसए, चाइना, तो हम लिख सकते हैं माई अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू चाइना, माई अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू रशिया, सो एंड सो, एक्स वाई जी, एनीथिंग. अब्रॉड का मतलब ही होता है कि अपनी कंट्री से या अपनी जगह से आप किसी दूसरे स्पेस में जा रहे हो, किसी दूसरे एरिया में जा रहे हो. आप किसी स्पेसिफिक जगह को मेंशन नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट मेंशनिंग अ डेस्टिनेशन एंड दैट इज वाई यू विल नॉट यूज टू. आप क्या बोलोगे? माई अंकल फ्रीक्वेंटली गोज अब्रॉड. अब्रॉड का मतलब अपने से, अपने लिविंग एरिया से थोड़ा सा दूर. सो यू विल नॉट यूज टू बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग अ डेस्टिनेशन. बहुत लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर. नो, आई एम गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर. बट अगर आप मेंशन कर रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू यूके, देन यू विल यूज टू. राइट? अब्रॉड के साथ टू कभी भी नहीं लगता. एरर कहाँ है? ए में. You need to omit to. Right? It is high time that we send the answer. It is high time that we send the answer. कभी भी high time हो यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए we use V2. तो it is high time we sent the answer. Always V2. High time आ जाए या it is time आ जाए. It is time we started studying. It is high time we completed our task. Always use V2. Simple past लगता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. Clear? He is very blind to read smallest of prints. He is very blind to read smallest of prints. Error यहाँ conjunction का है. If you look at it carefully, to read, इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए? T-double-O. He is too blind to read smallest of prints, and that is why error is in A. Next question is interesting. The officer as well as the assistants absented themselves from the office. The officer as well as the assistants absented themselves from the office. Let's see how many of you can actually answer this question. बहुतों को लगेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें. ऑफिसर लगा है, एज वेल एज के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं. यहाँ पे तो चलो पास्ट टेंस है तो इतना ज़रूरत नहीं है, और इसलिए नो एरर मार्क कर देंगे इसका आंसर. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अलावा प्रोनाउंस का भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एज वेल एज लगा है, दिस फ्रेज इज बीइंग यूज्ड, यू ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट. और प्रोनाउन भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, इसीलिए यहाँ पे देमसेल्व्स जो है वो गलत है. यहाँ पे क्या आएगा? द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस. राइट? द आंसर वुड देयरफॉर बी सी, बिकॉज प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल कि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जैसे देखते हैं वैसे. डन. Glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays. Glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays.
प्रेपोजिशन गलत है. ग्लिम्पसेस ऑफ द रिलीजियस साइड, रिलीजियस साइड का ग्लिम्प्स, राइट. तो ए में एरर है. बहुत ईजी था. Unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life. I want you all to answer this question. Unless you do not obey your elders, you will not succeed in life. सबको पता है unless और until जब भी आ जाए उस सेम क्लॉज में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लग सकता. Unless and until both have negative connotation attached, तो उसके साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उनका आप मर्ज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या आएगा? unless you obey your elders you will not succeed in your life. यहाँ पे आ सकता है इस क्लॉज में, जहाँ ये खत्म हो जाए unless वाला क्लॉज, उसके बाद नेगेटिव आ सकता है, आता ही है. बट यहाँ पे unless के साथ कभी भी नहीं आएगा. ग्रामर इज अबाउट दिस रूल कि आप कभी भी दो सेम मीनिंग वाले चीज़ों को इकट्ठे नहीं ला सकते, राइट. सो आंसर इज ए. Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them for mounting. Hurry up. Think of it. Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them for mounting. I think it's basic, it's very simple. ठीक है. neither of the scout leaders know. तो neither जब आ गया तो वो हमेशा ही किसके साथ होता है? सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट करते हैं उसको. तो यहाँ क्या आएगा? नोज. एरर इज ए, राइट. आप अगर इसको नन भी करोगे वो भी ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ नोज तो आना चाहिए, क्योंकि यू नो कि नीदर, नन, वन, ईच, एवरी, दे आर ऑल रिलेटेड विद सिंगुलर वर्ब्स. तो सिंगुलर वर्ब लगाना ज़रूरी है, राइट. जस्ट 2 more questions and then we'll be done. We will pack not only the material properly but will also deliver it to your valued customers. देखो, एक कंजंक्शन का टाइप होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, which refers to all the conjunctions that exist in pairs. For example, either or, neither nor, not only but also. बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि not only but also कहाँ लगाते हैं, वो कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है. सिमिलरली नीदर नॉर, ईदर और भी कहीं भी प्लेस कर देते हैं, विच शुड नॉट बी द केस. जब मैं कह रही हूँ वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली, हम पैक करेंगे ना सिर्फ मटेरियल को, पर हम किसको पैक करेंगे? डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स. ये सेंस नहीं बना रहा है. जो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमें उनके आगे कंजंक्शन को प्लेस करना होता है. हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वी विल नॉट ओनली, हम क्या नहीं करेंगे? हम ना सिर्फ आपके मटेरियल को पैक करेंगे, लेकिन उसको डिलीवर भी करेंगे, ठीक है. कॉमन क्या चीज है? वी. हम करेंगे क्या? नॉट ओनली पैक द मटेरियल बट ऑल्सो डू दिस. फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट ओनली लाइक टी बट ऑल्सो कॉफी. ये गलत है. आई लाइक, मुझे पसंद है, नॉट ओनली टी बट कॉफी ऑल्सो. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ऑप्शंस जिन 2 चीजों में है उन्हीं के आगे कंजंक्शन को लगाया जाता है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए. वी विल नॉट ओनली पैक. लास्ट क्वेश्चन. द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज. द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर in few days. ओके. ए में कोई एरर नहीं है, बी में कोई एरर नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. एरर है सी में, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है फ्यू डेज. फ्यू का नेगेटिव कॉनोटेशन होता है और अ फ्यू का पॉजिटिव. वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि भाई पॉजिटिवली वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? अ फ्यू डेज. तो इसलिए एरर भी किस में है? एरर है हमारा सी में, राइट. सो द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन अ फ्यू डेज. क्लियर? सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. थैंक यू सो मच एवरीबडी. एंड फिर हम
कल मिलते हैं नए सेशन के साथ. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन और एनी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू नीड, डू लेट मी नो. थैंक यू एंड गुड लक.